વિદ્વાન પંડિત પૂજ્ય શ્રી સુમન પ્રસાદજી આપણે આંગણે પધાર્યા છે. ખૂબ જ વિદ્વાન છે, જ્ઞાની છે. આપણે એમનો લાભ લેવાના છીએ, પણ એમના વિશે સરસ રીતે પરિચય વધારે વ્યવસ્થિત, જેમને વિશે વધારે જાણે છે એવા રાજકોટ દિગંબર સ્વાધ્યાય મંદિરના મેઇન સંત કહેવાય એવા શાસ્ત્રીજી એ આપણને એમના વિશે કહેશે. ડૉક્ટર સુનિલ કુમાર શાસ્ત્રીજીને હું વિનંતી કરું કે એ સાહેબ શ્રી વિશે પરિચય આપશે. પ્લીઝ સર. આદરણીય મોદી સર, બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌ અત્યારે હમણાં જ સરે વાત કરી, સાયન્સ ફેકલ્ટીના બધા સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારે વિરાજમાન છો. ઘણી બધી આપણે ક્લિપ્સ હમણાં જોતા હતા. શરૂઆતમાં હું જ્યારે આવ્યો ત્યારે ફેસબુક ઉપર જે ભાઈ અને બહેન વચ્ચે, સગા ભાઈ બહેન વચ્ચે જે ચેટિંગને લીધે જે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને આખરે એમને ખબર પડે છે ખરેખર એકબીજા સગા ભાઈ અને બહેન છે. આવી ઘણી બધી બાબતો વિજ્ઞાનના વિકાસની સાથે સંકળાયેલી છે, જે અંગે આપ સૌને શિક્ષણ સાથે સંસ્કાર એનું મહત્વ શું છે, કેવી રીતે આપણા જીવનમાં કે આપણે મોટમોટા સપનાઓ તો જોતા હોઈએ, જેમ કે એક એબોર્શન અંગેની પણ ક્લિપ આપણે બધાએ જોયા છીએ. તો આ બધી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થતા હોય અને એમ્બિશન વર્સિસ એબોર્શન નામથી ક્લિપ હતી, જો એનું ટાઇટલ આપ સૌને ખ્યાલ હશે તો આનું બધું સંકલન આપ સૌની સામે અત્રે રજૂ કરવામાં આવી. દોસ્તો, એક વાત સમજવા જેવી છે, આપણે કારકિર્દી અંગે જીવનમાં ગમે તેટલા મોટા હોદ્દાઓ પામવા અંગે આપણે સપનાઓ જોતા હોય, પણ ભારતીય સંસ્કૃતિ મુજબ જે ખરેખર સંસ્કારોનો વારસો આપણામાં હોવો જોઈએ, એ વારસો આપણામાં ખરેખર નહિવત દેખાય છે. હું ઘણીવાર જ્યારે દિગંબર જૈન દેરાસરમાં આદરણીય મોદી સર આવે તો આપ સૌ તો અહીંયા મંચ ઉપર એઝ એ ગેસ્ટ, એઝ એ ચીફ ગેસ્ટ, એઝ એ ટ્રસ્ટી તરીકે આપ સૌ જોતા હો, પણ ત્યાં જ્યારે ધર્મની સભામાં એ જ્યારે પધારેલા હોય, આવ્યા હોય, તો કોઈ ઊંચું આસન કે કોઈ ખુરશી એવી રીતની સ્થિતિમાં ન હોય. વિનમ્ર અને વિવેક ભાવે શાસ્ત્રજીની સામે, જેને અમે જીનવાણી કહીએ, એની સામે વિરાજમાન હોય. આપ સૌની સમક્ષ અત્યારે અહીંયા મંચ ઉપર ઉપસ્થિત છે અમારા મોટા ભાઈ તરીકે, અમારા ગુરુ તરીકે, જેને અમે ભાઈ સાહેબ તરીકે બોલાવીએ, પંડિતજી તરીકે બોલાવીએ, ધર્મગુરુ તરીકે અનુયાયીઓ બધા ઓળખાવે, બાલ બ્રહ્મચારી સુમત પ્રકાશજી છે. તેઓ કોમર્સ ફેકલ્ટીના એક કાળે વિદ્યાર્થી હતા, પછી કાળક્રમે કોમર્સ સબ્જેક્ટમાંથી જ લેક્ચરર પ્રોફેસરની પદવી પણ વિભૂષિત કર્યા. ભોપાલની એક પ્રસિદ્ધ કોલેજમાં તેઓ કોમર્સના લેક્ચરર હતા, પણ VRS લઈને આ અધ્યાત્મના માર્ગે, ધર્મના માર્ગે તેઓ આગળ વધ્યા. અને મારો વ્યક્તિગત પરિચય તો નહીં ને તો 20 થી 25 વર્ષનો તેઓ શ્રી સાથેનો છે. અત્યારે રાજકોટના આંગણે દિગંબર જૈન દેરાસરમાં ત્યાં દિગંબર જૈન સમાજના આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા છે અને નોલેજેબલ છે ઘણી બધી બાબતમાં, નોટ ઓનલી સ્પિરિચ્યુઅલ પણ સોશિયલમાં પણ કેવી રીતે આપણે વર્તવું જોઈએ. ઘણી બધી, જેને કહીએ ને આપણે, આપ સૌ તો સાયન્સ ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થી છો, પણ આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં વગેરે એક મોરલ એજ્યુકેશન ભણાવવામાં આવે છે. મોરલ એજ્યુકેશન. અને હમણાં તો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયથી એક રામકૃષ્ણ મિશનથી આપણે રાજકોટમાં એક એવું મિશન ચલાવવામાં આવે છે કે ગ્રાન્ટેબલ બધા સ્કૂલોમાં જીવન મૂલ્ય આધારિત શિક્ષણ આપવા માટે ફીસ આપવામાં આવે સ્ટુડન્ટ્સને. એટલે એક પ્રચાર પ્રસારને લીધે સંસ્કારનો વારસો જળવાઈ રહે. એમાં કન્ટેન્ટ્સમાં ખાસ કરીને સ્વામી વિવેકાનંદના બધા સૂત્રો હોય. સ્વામી વિવેકાનંદ કેવી રીતે બ્રહ્મચર્યની આરાધના કરી, કેવી રીતે ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર કર્યો. તો જુઓ, આપ સૌને ખ્યાલ છે સ્વામી વિવેકાનંદનો તેજ, સ્વામી વિવેકાનંદની આત્મશક્તિ, એમનો આત્મબળ,
એ સંસ્કારને લીધે આવે, શિક્ષણને લીધે કેવળ નહીં આવે. ટેકનિકલ નોલેજ તો મળી જાય, પણ આપણને સંસ્કારનો જે વારસો હોવો જોઈએ તે અંગે આપ સૌને વિશેષ માર્ગદર્શન આપવા માટે આદરણીય પંડિતજી પધારેલા છે. આપ સૌ થકી અને આદરણીય મોદી સર વતી આપણે પંડિતજીનો કરતલ ધ્વનિથી આપણે સૌ તાળીઓથી અભિવાદન કરીએ. અને વધુ ન કહેતા હું આદરણીય પંડિતજીને વિનંતી કરું છું, આપ સૌને ઉદ્દેશીને શિક્ષણ અને સંસ્કાર અને આજકાલના જમાનામાં કે આપણે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ, હમણાં આપણે જે જોતા એમાં કેવા કેવા પ્રસંગો હતા જે આમ રૂવાટા ઉભા કરે, આવું તો ઘણું બધું અહીંયા આપણી પાસે કલેક્શન છે. આપ સૌને કોઈને પણ જોતું હોય, મોદી સર પાસે બધું કલેક્શન રાખેલું છે, એટલે આપ સૌ સંપર્ક કરી શકો. એના અંગે વિશેષ સૂચના સર આપ સૌને આપશે. હવે આદરણીય પંડિતજીને હું વિનંતી કરું કે આ તકે આપણને સૌને ઉદ્બોધન કરે. जय हिंद. वेरी गुड. जानबूझ करके मैंने जय हिंद से ही आपसे फैमिलियर हुआ हूं, परिचित हो रहा हूं आपसे जानबूझ करके. थोड़ी देर बाद पूछूंगा कुछ आपसे, आपको भारत पसंद है या नहीं, ये आपसे पूछूंगा मैं थोड़ी देर बाद. सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम तो आपने सुना ही होगा सभी ने. वो आपको बड़ा प्यार करते हैं. जब भी कहीं जाते थे राष्ट्रपति होते हुए भी तो बच्चों से, छात्रों से, स्टूडेंट से जरूर मिलते थे. और अभी भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि वो स्टूडेंट से जरूर मिलते हैं. मैं उन्हीं की एक बात को आपके सामने रख रहा हूं कि उनको एक बड़ा पीड़ा थी, एक बहुत दुख था कि हमारे बच्चों को आज पैसा कमाना तो सिखाया जा रहा है स्कूलों और कॉलेज में. लगभग आपकी एक डिग्री की कीमत आज यदि आप MBA हो जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, तो लगभग 25-50 लाख रुपए की एक डिग्री पड़ रही है आपके ऊपर. इस बीच बच्चे पैसा कमाना तो किसी तरह से सीख जाते हैं, लेकिन मॉरल एजुकेशन अर्थात नैतिक शिक्षाओं से दूर हो रही. इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी चाल है. यदि आप समझें, राजीव दीक्षित के लेक्चर यदि किसी ने सुने हो या सुनते हो या सुने, मैं जरूर आपको प्रेफर करूंगा कि राजीव दीक्षित जी के लेक्चर आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, आप जरूर सुनिए. मैंने यहां भी दिए स्कूल में, आप चाहें तो उनको ले सकते हैं. मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करूंगा. वर्ल्ड में टैलेंट का एक लेवल होता है, इंडेक्स होती है, टैलेंट इंडेक्स. आपको जानकर गर्व होगा, हमारा भारत टैलेंट इंडेक्स में नंबर 1 है. आज से नहीं, हजारों वर्ष पहले से. अभी भी मेरे पास, आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो जब हमारे बुश थे, जब क्लिंटन थे और अब ओबामा है, इन दोनों की एक इंस्पायरेशन होती है स्टूडेंट्स के लिए उनके अपने देश के कॉलेजों में. वे कहते बेटा पढ़ाई अच्छे से करो, नहीं तो तुम्हारी सारी की सारी नौकरियां भारत वाले और चाइना वाले ले जाएंगे. सुना होगा आपने, पढ़ा होगा. माने भारत से इतनी खौफ है उनको, इतना डर लगता है कि भारत वाले बहुत टैलेंट में नंबर 1 है. आपको जानकर के ताज्जुब होगा, भारत में रहते हुए अंग्रेजों को इंग्लैंड में, लंदन में इंग्लिश सिखाने का काम हमारे इंडिया से हो रहा है. आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारा टीचर यहीं से बैठ करके उन्हें पढ़ाता है और लाखों पाउंड कमा रहा है. आप कल्पना कर सकते हैं कि लंदन में पढ़ाने वाला अंग्रेजी नहीं जानता या इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता. भारत टैलेंट के मामले में आज पूरे वर्ल्ड का हब बना हुआ है. सस्ती लेबर के मामले में हब है चाइना, लेकिन टैलेंट के मामले में आपका ये सौराष्ट्र, आपका ये गुजरात, मालूम है ओबामा की सेक्रेटरी कौन है? वो आपके गुजरात का है. यदि वहां पर नासा में कोई काम कर रहे हैं 50% स्टाफ ऑफ इंडिया, वो पूरा का पूरा गया है हमारे गुजरात से, नासा में जो काम कर रहे हैं. हमारा कहने का आशय है कि हमको बड़ा गर्व होना चाहिए. लेकिन अब लेकिन कह करके मुझे थोड़ी सी बात आपसे करनी है. आप में से कौन ऐसा नहीं चाहेगा कि आप फर्स्ट रैंकर गोल्ड मेडलिस्ट बने? आप में से कौन नहीं चाहेगा कि मैं दी बेस्ट साइंटिस्ट बनूं, इंजीनियर बनूं? कौन नहीं चाहेगा. लेकिन वर्तमान में जो हमारा वेस्टर्न कल्चर टेलीविजन के माध्यम से हम देख रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम चैटिंग देख रहे हैं, फ्रैंक लाइव देख रहे हैं, फ्री सेक्स क्या कहते हैं आप लोग, इस तरह की जो बातें हम सोचते हैं,
इससे आपका टैलेंट का रेट गिरता है। आपको जानकर के दुख होगा, पिछले वर्षों का जो मैं टैलेंट रेट बता रहा हूं, स्टूडेंट्स के अंदर से पढ़ करके निकलने वाले विद्यार्थियों में से दी बेस्ट साइंटिस्ट और दी बेस्ट इंजीनियर, दी बेस्ट डॉक्टर नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे? उसका कारण ये है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग में फिजूल की बातें होती हैं। सपोज आप मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल में एक एसएमएस आता है और आप उस एसएमएस को रात को 10 बजे पढ़ते हैं, 11 बजे पढ़ते हैं, पढ़ाई के बीच में पढ़ते हैं, तो आपको आधा घंटे तक वो बातें दिखाई देती, किसने एसएमएस किया, कहां से किया, क्यों किया। यदि किसी लड़की ने किया तो फिर तो पूछ नहीं किया। तो अब आपका दिमाग में वही घूमता रहेगा, तो कल मुझे कहां मिलना है, डेटिंग करनी है कि नहीं करनी है, बात बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है, और फ्रेंड सर्किल में मुझे हाँकनी तो समझते ना, ऊंची ऊंची देना। 4 विद्यार्थी मिलकर ऊंची ऊंची दे रहे हैं, अरे यार मैंने तो इशारा किया यार, मैंने उसको बात की यार, और ऑफर किया यार, बस खत्म। माने आप में से 90% लोग फालतू बातें करने में अपना टैलेंट खो देते। आप खुद देख लेना, जब जब आप इंटरनेट, चैटिंग, मोबाइल, एसएमएस, एमएमएस इन चक्करों में पढ़ते हैं, सही बताना आपका ब्रेन लेवल, आईक्यू, आपकी शार्पनेस बढ़ती है या घटती है? मैं चाहता हूं बच्चों, मैं कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूं, मैंने बच्चों को बहुत प्यार नजदीक से देखा है। मेरा भी विद्यालय चलता है, नर्सरी टू 12th मेरे यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए मैं उनकी साइकोलॉजी से बहुत प्रभावित रहता हूं। मुझे मालूम होता है कि इवेल्यूट कर सकता हूं कि वो कहाँ हैं। मैं आपको बड़े प्यार से कहने के लिए आया हूं कि यदि आप कुछ सावधानियां रखेंगे तो जिंदगी में आप 5 साल केवल मेहनत करनी है आपको, 12th के बाद 5 साल, 6 साल, इसके बाद पूरी जिंदगी आप सुख उठाएंगे। लेकिन इन 5 सालों में मैं जानता हूं मेरे साथी जो पढ़ने वाले थे वो ऐसी ही बातें करते थे जो मैंने अभी बताई आपको। पिक्चर देखना, बंक मारना, घूमना फिरना, कॉलर खोल के, अरे यार अपन तो कॉलेज का स्टूडेंट है, मैंने इस स्टाइल से घूमना, होटलबाजी करना, लॉन्ग ड्राइव पर चले जाना यदि बाप के पास पैसा हो तो। लेकिन आज वे लोग कहां खड़े हैं और मैं कहां खड़ा हूं, दोनों में बहुत डिफरेंस। उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मैं एक बहुत सिंपल सी स्टोरी कहूं, यदि आपको एग्जांपल समझ में आए। हर व्यक्ति को एग्जांपल देखिए, सूर्य, सन, सूर्य की किरणों को यदि हम फोकस कर ले लेंस के द्वारा, लेंस होता है, हम उसे फोकस कर दे तो हम जला सकते हैं उसको। उसकी सारी किरणों को, रेज को यदि हम कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस करें तो हम उसमें से आग पैदा कर सकते हैं। लेकिन बिखरा हुआ सूर्य का प्रकाश आग पैदा नहीं कर सकता। ऐसे आपके पास एक टैलेंट लेवल है, सबके पास है। आप में से प्रत्येक विद्यार्थी अब्दुल कलाम बन सकता है, आप में से प्रत्येक विद्यार्थी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, आप में से प्रत्येक व्यक्ति इंटरनेशनल IMF का चेयरमैन बन सकता है। कोई भी चीज आपके लिए बड़ी नहीं है। मैंने आपसे जय हिंद कहा है केवल गर्व के खातिर, और अभी मैं कहता हूं आप भारत के पाया हो, आप भारत के आधार स्तंभ हो। ये जहां जनशक्ति, जहां विद्यार्थियों की चेतना, जन चेतना, इंटेलिजेंसी का फ्लो होगा, देश वहां जाएगा। मुझे आपसे कुछ बातें बाद में करनी है, जो मैं अभी आपको इसकी भूमिका बना रहा हूं। बच्चों, आपके पास 30 दिन की शक्कर है, शक्कर तो समझते हैं, साकर, शुगर। आप चाहें तो पहले 10 दिनों में रोज हलवा बनाइए, खीर बनाइए, शिकंजी बनाइए, और रस पूरी बनाइए, मिठाइयां बनाइए। 10 दिन बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन नेक्स्ट 20 डेज क्या होगा आप बता सकते हैं? नेक्स्ट 20 डेज आपको शक्कर नहीं होगी, आपके पास घी नहीं होगा, आपके पास बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे ही आपके यहाँ गेस्ट आएंगे आप परेशान हो जाएंगे, अब शक्कर पड़ोसी से लानी पड़ेगी, उधार लानी पड़ेगी, बहुत दिक्कत आएगी। ऐसे ही आपकी लाइफ में टैलेंट, हैप्पीनेस, जिसको आप गुड लक कह सकते हो, पुण्य कह सकते हो, वो लिमिटेड है आपके पास। आप चाहें तो इस एजुकेशनल लाइफ में 5 इयर्स के अंदर आप मस्ती मारकर उसे खो सकते हो, और नहीं तो सारी जिंदगी उसको वापर सकते हो, उसको सारी जिंदगी कंज्यूम कर सकते हो, आनंद कर सकते हो। ऐसा क्यों है कि हमारे फॉर फादर के जमाने में डाइवोर्स नहीं होता था, आज डाइवोर्स क्यों हो रहा है? तब हमारे मम्मी पापा और जो फॉर फादर आदि थे उनमें इतना तनाव नहीं था, आज तनाव क्यों है? आज एक लड़का
फुल्ली कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता है कि मेरी जो लाइफ पार्टनर आएगी वो जिंदगी भर मेरे साथ रह जाएगी। जरा गुस्सा आता है तो पहला ही वाक निकलता है तो डाइवोर्स ले लो। बॉम्बे की कोर्ट में 75 डाइवोर्स केस ओनली यंगर जनरेशन के हैं। 25 से 35 बरस की उम्र के 75% डाइवोर्स केस, क्योंकि इनके पास पेशेंस का लेवल नहीं बचा। दाम्पत्य जीवन जिसको हम कहते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ अपनी फैमिली लाइफ, वो सुखमय नहीं रह रही आज की तारीख में। क्यों नहीं रह रही है, ये आपको विचार करना पड़ेगा। आपने 30 दिन की शक्कर 10 दिन में खा ली। आप यदि चाहते हैं कि फुल लाइफ आपकी पत्नी सीता हो, तो आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, आप राम बनो। शादी के पहले हमें इस तरह के मूड में नहीं पड़ना है। फ्रैंक लाइफ, चैटिंग। आजकल हमें क्या लगता है, जो लड़का चैटिंग नहीं करता वो तो पप्पू है। अरे यार तू भी यार, माने हम क्या सोचते हैं कि यदि हम इस तरह की हरकतों में पड़ गए तो मर्द बन गए, मर्द। लेकिन मैं पूछूं आपसे, रावण को आप मर्द मानते हो कि राम को? माई क्वेश्चन इज, राम को आप मर्द मानते हो कि रावण को? पक्का? जरा जोर से, हेलो, जरा जोर से बोलना, किसको मर्द मानते हो? बड़े दुख की बात है, हम सुबह सुबह राम की पूजा करते हैं, राम की पूजा, तिलक लगाते हैं, जो लोग लगाते होंगे। बाहर आते से ये सीता भाग रही है, इसको पकड़ना है। क्या ये हमारी डिप्लोमेसी नहीं है? क्या ये हमारी डिप्लोमेसी नहीं है? क्या आप समझ सकते हैं कि रामचंद्र जी या एनी गॉड, जो भी आप कहें, आप शंकर कहिए, महादेव कहिए, कृष्ण कहिए, लॉर्ड कहिए, ईसा कहिए, जिन्हें आपको कहना कहिए, खुदा कहिए, आपको नहीं मालूम वो जानते हैं आपको, वो सब वस्तुओं को जानते हैं, सब चीजों को जानते हैं। तो वो आपको कैसा जानते होंगे कि देखो ये अभी मेरी पूजा कर रहा है, अभी निकल करके देखो ये क्या करने वाला है। तो उनको कैसा लगता होगा? हमारा भारत देश लॉट ऑफ देवियों की पूजा करता है, देवियां। हम नौ दिन का 9 तप करते होंगे, 9 व्रत करते होंगे, 9 क्या बोलते हैं आप व्रत करते हैं, बहनों की पैर छूते हैं, बहनों को अपन राखी बंधवाते हैं, हम उनको शक्ति का रूप कहते हैं, हम उन्हें देवियों का रूप कहते हैं। वो गजब बात है, हम वो समय भूल जाते हैं जब हम सड़क पर होते हैं, तब हम देख रहे हैं। बस मैं यही चाहता हूं, आपको राम बनने के लिए मर्द बनना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको मर्द बनना पसंद, ठीक है, क्या बात है। तो समझना आप, तो आप यदि मर्द बनना चाहते हैं और इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको न्यूज़पेपर की घटनाएं सुना सकता हूं ढेरों, आप खुद पढ़िए। मैं चाहता हूं आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। क्या आप उन घटनाओं से सहमत हैं जब एसिड फेंका जाता है, एसिड अटैक, आप सहमत हैं? कभी आपकी बहन के ऊपर कोई ऐसा करे तो आपको बर्दाश्त होगा? मैं अपने कॉलेज की एक घटना सुनाऊं आपको, सच्ची घटना। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, लेक्चर दे रहा था, तो उस समय एक पिक्चर बनी थी 1988 मैं बताता हूँ, 1988 में एक पिक्चर बनी थी, नाम था उसका दिल। हो सकता है आप में से कई लोगों ने देखी हो, पुरानी फिल्म थी, बनी उस समय नहीं बनी थी। तो लड़के लोग उस दिल पिक्चर को देखकर आए होंगे, तो बातें तो करते ही पीछे पीछे बैठ करके। मैं अटेंडेंस ले रहा था, तो मैंने लड़कों से पूछा क्या बातें कर रहे हो पीछे? बोले सर दिल। फ्रैंकनेस रहती थोड़ी कॉलेज में। मैंने अच्छा, तो आप क्या समझते हो, प्यार करना बहुत अच्छी चीज है? बोले यस सर, प्यार तो लव इज लाइफ। तो मैंने विद्यार्थियों से पूछा, अरे यार तो फिर मेरे को भी लव हो जाए तो बोले अरे सर गुड। तो मैंने कहा लेकिन वो मेरी जाति की नहीं है। छात्र फौरन बोले अरे इंटरकास्ट चलती है आजकल, क्या है, क्या मर्यादाओं में रखा, सारी दीवारों को तोड़ दो। जिस स्टूडेंट ने ये बात कही थी मैंने उसी को स्टैंड अप किया, खड़े हो जाइए, मैं सुंदर हूं,
जॉब मेरी बहुत जोरदार है और तुम्हारी बहन मुझे पसंद। इससे पहले मैंने एक बात और पूछी थी, लेकिन उनके मम्मी पापा राजी ना हुए तो उसी छात्र ने कहा था सर किडनैप कर लीजिए और मुझे बुला लेना, मैं किडनैप में मदद करूंगा। तो मैंने उसी विद्यार्थी से कहा अब आप खड़े हो जाइए और बताइए कि आज शाम को 5 बजे मैं किडनैप करने आऊं तो आप मेरे साथ चलेंगे? मैं आपकी सिस्टर को किडनैप करना चाहता। बस चेहरा इतना सा, सारे बच्चे शांत। मैंने बेटा पिक्चरों से जो बातें हमको डेयर पैदा करती हैं ये बातें गलत हैं। जब हमारे ऊपर गुजरती है, हमारी पत्नी पर गुजरती है, आज कल्पना करो आपको पता है 90% पति पत्नी में शादी के 1 साल बाद नहीं बनती है। केवल इतनी सी बात होती है कि पत्नी के हाथ में मोबाइल है। पति रात को आकर के चुपचाप देखता है कि इसके मोबाइल में कौन कौन का नंबर है। यदि एक भी SMS मिल जाता है उसको, उसके पिछले मित्रों का, स्कूल कॉलेज की लाइफ के मित्रों का कोई SMS मिल जाता है, बस वहीं से मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। दोनों में तनाव, शंकाएं, डाउट्स और झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछूंगा आज आपको वेस्टर्न कल्चर पसंद है या हमारा ईस्टर्न कल्चर पसंद है? वेस्टर्न कल्चर की बात करूं तो आपको शर्म आएगी, शर्म। आपको पता ही होगा बहुत अच्छा, अभी हैरी की शादी होगी ना, हैरी की शादी हुई है इंग्लैंड में। हैरी है ना, विलियम क्या नाम है, प्रिंस विलियम यही नाम है कुछ। इसके पिताजी की शादी भी मेरे सामने हुई थी, आपके सामने तो इसके बच्चे की शादी हुई। आप कल्पना कर सकते हो, जिसको आप प्रिंस कहते हो, जिसका बड़ा उत्सव मनाएगा, उसकी बच्चे होने का जो भी हुआ अभी बड़े उत्सव मनाए गए, इसने एक दिन भी अपनी मां की गोद नहीं देखी। इसकी मां का नाम है डायना, अपने भारत में कहे तो डायन। इसकी मां का नाम है डायना और इस मां ने कभी भी अपने बच्चे को गोद में नहीं लिया। 2 बच्चे हुए, हैरी एंड विलियम। आप कल्पना कर सकते हैं, एक हॉस्टल में पढ़े हैं दोनों बच्चे। इसकी मां एक डोडो नाम का इसका लवर था, उसके साथ घूमती थी। माने हम उसकी बात कर रहे हैं जो रानी कहलाती है, महारानी कहलाती है। बड़े उत्सव के साथ इसका शादी हुई। आप कल्पना नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट से पूछा जाए उनके पापा के बारे में, बेटे ये कौन है आपके, तो सिर झुका करके कहता है विदेश में, ही इज माई 15th नंबर फादर। क्योंकि उसकी मम्मी के पास यदि वो रहता है तो उसकी मम्मी 15 बदल चुकी है। अब कितना दुखद। एक मम्मी के बारे में पूछा जाए ये कौन है आपकी, तो वहां का बच्चा जवाब देता है ये मेरे 20वें नंबर की मम्मी है। आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह की बात। लेकिन ये चीज वहां से आ रही है। अभी आपने जितनी पिक्चर देखी है, मेरे पास और पिक्चर्स है, आपको बताऊं एक एक चीज। सुअर को हम छूना पसंद नहीं करते, लेकिन पार्ले जी में हम सुअर की चर्बी खाते हैं। पार्ले जी का बिस्किट, च्युइंगम में हम सुअर की चर्बी खाते हैं। आप चाहें तो इंटरनेट पर सर्च करो, आप चाहें तो मेरे से जानकारी ले लो जो मैंने दी है सर के लिए आपके पास। ऐसी एक चीज नहीं है। कुरकुरे प्लास्टिक के बनाए हैं, आपके पेट को कितना हार्म करेंगे देखो आप। खाने पीने की ऐसी ऐसी एक एक सामग्री। अभी तो आपको पूरी पिक्चर नहीं दिखाई, आप 10 मिनट बैठो। गाय को आधा काटने के बाद, भैंसों को आधा काटने के बाद एक एक बूंद निचोड़ लिया जाता है और उस बूंद से पूरे इंडिया में आज उस ब्लड से बनाया जाता है कत्था, जो आपके पान में लगाया जाता है, जो आपके पान पराग में डाला जाता है, जो जिससे आपका रंग आता है ना पान में, वो उसका बनाया जाता है। असली कत्थे का रेट है 2500 रुपए केजी, 2500 रुपीज पर केजी का रेट है उसका। इतना महंगा कोई नहीं खरीदता। 100-125 रुपए का पाउडर का पैकेट आता है, वो डाला जाता है। आज वेस्टर्न के कारण हम सब भ्रष्ट होते जा रहे हैं, अपने धर्म से, अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से, और उसका फल भी हो रहा है कि आज हम में से 90% अभी तो नहीं सोचते होंगे ऐसा, लेकिन देखना आप जॉब लगते से ही, शादी होते से ही हमारी पहली सोच ये होती है कि हम मम्मी पापा के साथ नहीं रहेंगे। तो फिर सुन लो बच्चों, मैं इसको कुविद्या कहता हूं, कुविद्या। हम उस विद्या को विद्या नहीं कहते जो अपने माता पिता से दूर कर दे, अपने धर्म से दूर कर दे, अरे अपनी आत्मा से दूर कर दे और हमें अपने देश से दूर कर दे।
मैं आपको ताइवान के फोटो दिखाऊं, चाइना की समाचार दिखाऊं, चाइना और ताइवान, जैपनीज कंट्रीज, यहां पर $75 में एक मां अपने बेटे को बेच देती है। उस बेटे को वॉश बेसिन में सब्जी की तरह धोया जाता है और जैसे हम दूधी को छीलते हैं ना, दूधी को ऐसे उसकी स्किन उतार दी जाती है, उसके पीसेस करके हम मॉल में बिकते हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं, मेरे पास रखी है भैया। यदि आप मॉल में पहुंच जाएं, किसी मॉल में, और आप कहें कि हमें बिल्कुल ताजा बच्चा चाहिए खाने के लिए, तो वहां बच्चे को वॉश बेसिन में धोने के बाद दोनों हाथ दोनों पांव काट करके और फ्राई करके परोस दिया जाता है। और जैसे आप खाते हैं, कहना ही नहीं चाहिए गंदी बात, आप भुट्टा खाते हैं ऐसे वो पकड़ के खा जाता है। सैंडविच के बीच में बच्चा रखा हुआ, आप पोज देखो, इंटरनेशनल मार्केट में दो बुक है 250-250 पेज की, जिसमें ह्यूमन मीट कैसे पकाया जाए, ह्यूमन मीट से कैसे उसकी किडनी की मिठाइयां कैसे बनाई जाए, उसके लंग्स कैसे खाए जाएं और उसकी लीवर कैसे खाया जाए, उसका ब्रेन कैसे खाया जाए। ये चाइना की हालत। लेकिन हो सकता है हम कभी जाकर के नहीं पूछते मॉल में कि आपने ये चीज किससे बनाई है, सैंडविच किससे बनाया है, आपने ये बर्गर किससे बनाया है, आपने हॉट डॉग किससे बनाया, हमें पता ही नहीं लगता है। मेरे पास ऐसी सैकड़ों जानकारियां हैं और यदि राजीव दीक्षित को आप सुनेंगे तो वो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी वहां से, जिसमें सबकी लिस्ट दी गई है। आजकल तो ई नंबर आते हैं, नंबर। चाचा चिप्स, अंकल चिप्स बहुत फेमस है। 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया उस कंपनी पर, केवल इसलिए क्योंकि उसने गाय की चर्बी में तले थे वो। 500 रुपए 500 रुपीज पर केजी का घी कोई फैक्ट्री इस्तेमाल नहीं करना चाहती, सबको सस्ती पड़ती है चर्बी, वो चर्बी का इस्तेमाल करती है। हमें मालूम नहीं पड़ता, हम गाय की पूजा करते हैं, गाय का तिलक करते हैं, गाय की आरती करते हैं और हमें गाय का मांस खिलाया जाता है। एक नेस्ले की टॉफी आती है, नेस्ले की टॉफी, उस टॉफी में इसलिए दंड लगाया गया कि उसने उसमें घोड़े का मांस डाला था। मेरे पास इतनी जानकारियां हैं, यदि मैं इसी में समय लगाऊंगा तो बहुत चला जाएगा। लेकिन आप ब्रेन खुला रखिए, अपनी आंखें खुली रखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, चेक करिए, आप किसी की बातों में मत आइए। 2 बातों कह करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि आपका टाइम भी होगा, आपको भी घर जाना होगा, मुझे भी जाना है। 2 बातें खास तौर, एक तो इंटेलिजेंसी बढ़ाने के लिए शादी से पहले हमारे, आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट लाइफ के ऊपर, ऐसे विद्यार्थी जीवन पर निबंध हमारे समय में तो पढ़ाते थे, आप क्या भी पढ़ाते? नहीं पढ़ाया जाता, कोई बात नहीं, आप बुक में देख सकते हैं। हमारे समय में ये पढ़ाया जाता था, स्टूडेंट लाइफ पर एक निबंध था, विद्यार्थी जीवन। उसमें 4 पार्ट किए गए मनुष्य के। पहला पार्ट है ब्रह्मचर्य। चाहे हमारे राम, यदि कृष्ण वे सूरवीर थे, यदि महावीर सूरवीर थे, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। हम गंदी बातें सोच करके अपना टाइम खराब करते हैं। आप देख लेना, फालतू बात जब दिमाग में आती है, आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होता। जब भी हम गप्पे ठोकते हैं, जोक छोड़ते हैं, SMS पढ़ते हैं, हमारा बहुत समय बर्बाद होता है। मैं चाहता हूं अपनी शक्ति बुद्धिपूर्वक इससे बचाइए। नंबर 1, तो इससे आपकी इंटेलिजेंसी लेवल बढ़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, एक प्रण हमें जरूर ही करना चाहिए। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो बच्चे लव अफेयर करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, माँ बाप को शेयर तक नहीं करते, अपने डिसीजन मेकिंग में उनकी मदद नहीं लेते हैं। लेकिन जब आपका जन्म होता है ना, माँ बाप बहुत सपने देखते हैं 25 साल तक कि बहू आएगी, लाड़ी आएगी, इसमें 1 तोला रकम चढ़ाएंगे, ऐसे कपड़ा लाएंगे, ऐसा करेंगे। आजकल बहुत सारे घरों में एक ही लड़का होता है, एक ही संतान या 2 संतान होती है। पहले जैसा नहीं है कि चलो एक आध चला गया लव अफेयर करके तो कोई बात नहीं, अब तो एक ही होता बेचारा, उसी को पढ़ा लिखा के तैयार किया। लेकिन उनको कितनी पीड़ा होती होगी। आप जहर दे दो ना तो 1 सेकंड में मर जाएंगे मम्मी पापा। लेकिन जब आप लव अफेयर करते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मम्मी पापा की केयर नहीं करते हैं, तब उन मम्मी पापा पर दिन रात कितनी तकलीफ होती होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप जा करके देखो, झुरी झुरी ने मर जाए। जब भी समाज का कोई पूछता है, कोई सगा पूछता है, कोई रिश्तेदार पूछता है, कोई मंदिर में पूछता है, तुम्हारे दीकरो ने शू थयो, कहीं खबर छे?
तुम्हारी डिग्री नहीं सोच क्या कहे बेचारा, झट सिर झुका के घर आ जाते हैं और रोते हैं। उसकी पीड़ा की आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक बात कहूंगा, आप प्लीज अपने माता पिता का भरोसा करो, वे आपके परम हितैषी हैं। इस दुनिया में उनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है हमारा। आप उनसे अपनी बात शेयर करो, ट्रांसपेरेंसी रखो। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मैं जानता हूं इस समय हमको जैसे ही चेंज आता है बॉडी में, हार्मोन्स चेंज होते हैं, आप पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, आप समझ सकते हैं ये बात, तभी हमको ये सारे अट्रैक्शन क्रिएट होते हैं, दिमाग में बहुत नई नई बातें ख्याल में आती हैं। तो मैंने इसके लिए आपको इंटरनेट पर भी एक लेख दिया हुआ है, किशोर सावधान, आप उसे पूरा पढ़ सकते हैं। बच्चियों के लिए मैंने लिखा है वह ना भूल न जाना, आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। मैंने स्कूल में भी इसकी कॉपी दी है, सॉफ्ट कॉपी दी है, आप यहां से ले सकते हैं। आप जरूर पढ़िए, आपको उसमें सारे क्वेश्चन जो जो आपके दिमाग में उतरते होंगे वो सबके जवाब उसमें मिल जाएंगे, फ्रैंकली मिल जाएंगे, विदाउट एनी सैमिंग मिल जाएंगे। आपको हेजिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम गलत रास्ता नहीं अपनाएं। नंबर 2 हमारी बात, अपने माता पिता को दगा कभी नहीं देना। माता पिता को धोखा देना माने साक्षात भगवान को धोखा देने जैसी बात है। अभी आप ये बात समझ सकते हो, मैं जानता हूं जब आप जॉब करेंगे और शादी होगी तब तक शायद क्या होगा, इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। तो 2 बात हो गई। तीसरी बात बहुत खुल करके कह रहा हूं, अब फिर से पूछ रहा हूं, सबसे ज्यादा डिप्रेशन का रेट है जापान का, सेकंड नंबर है डिप्रेशन रेट। समझते हैं डिप्रेशन रेट? कल जापान का पढ़ा आपने अखबारों में? जापान कितने कर्जे में पढ़ा होगा आपने? जापान पूरा का पूरा देश डिप्रेशन में पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति जिसके यहाँ 1400 एम्प्लॉइज काम करते हैं एम्प्लॉइज, और उस व्यक्ति ने जब इकोनॉमी आया तो रेल के नीचे कट करके जान दे दी। इतना डिप्रेशन रेट। लंदन इंग्लैंड में डिप्रेशन रेट आप पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड में एकमात्र वेबसाइट चल रही है जापान की, हाउ टू सुसाइड। मे आई हेल्प यू हाउ टू सुसाइड। प्रति वर्ष वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग जापान में सुसाइड कर लेते हैं उसको पढ़ करके। यदि आपको वेस्टर्न कल्चर पसंद है तो उसका एंड ए है। आप मेरे साथ इंग्लैंड चल के दिखा सकता हूं मैं आपको। 70 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, जब तक शरीर में दम है तब तक तो पार्टनर मिलते हैं, लाइफ पार्टनर बदलने के लिए। लेकिन इसके बाहर केवल घर में नौकर होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। आप इसको कह सकते हैं मटेरियलिज्म, भौतिक बात होता है। घर में आने पर एक पत्नी नहीं होती विश्वसनीय। वहां के पति पत्नी आपस में एटीएम का कोड नंबर नहीं बताते एक दूसरे को, ना मालूम किस दिन डाइवोर्स हो जाए। मैं उनको एक बहुत अच्छा नाम देता हूं, बोलूं? हमारे यहाँ का मैरिज कल्चर तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। गिनीज बुक में एक नाम लिखा हुआ है कि वर्ल्ड में वेस्टर्न कंट्रीज में एकमात्र पेयर ऐसा है जो 100 साल की उम्र तक जिन्होंने दूसरा लाइफ पार्टनर नहीं किया। एक नाम है केवल उनके पास, ओनली वन। बाकी तो 11-12 साल की उम्र में ही पढ़ सकते हो आप अखबारों में। लेकिन 4 दिन की चांदनी, देखो उनका एंड कैसा था, उनका एंड कैसा था वो आप देखिए। उसमें घर आते हैं, नौकर होता है, पूछता है सर क्या खाना पसंद करेंगे। अब उसका मूड ऑफ है तो रहने दो यार, कुछ नहीं खा रहे। नौकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। कितना बुरा लगता होगा उसको। करोड़ों अरब पॉन्ड्स हैं, डॉलर है, प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, शेयर मार्केट में अरबों का बिजनेस है, लेकिन घर में एक पत्नी ऐसी नहीं है जो आपके पापा के पास है। आप घर में जाकर देखना, मम्मी पूछती है भोजन कर लो, पापा हारे थके आए, मूड ऑफ है, कोई बात है तो बोले रहने दो आज भूख नहीं है, नहीं खाना है आज। अरे नहीं एक आध रोटी खा लो, देखो तुम्हारे मन की भाकरी बनाई है, देखो आओ ना, अरे थोड़ा सा ले लो। अब बोलो तो क्या बना। माने ये जो प्रेम मिलता है ये हमारे इंडियन कल्चर में मिलता है। विदेशी कल्चर में पत्नी अपने हाथ से भोजन बनाकर कभी नहीं कराती। वहां पर उन दुर्भाग्य देखो, उन बच्चों का दुर्भाग्य देखो। बोलूं पहले दुर्भाग्य से पहले, हमारे यहाँ रोज ताजी सब्जियां बनाई जाती हैं, ताजी दाल बनाई जाती है। हम सुबह की दाल रोटी शाम को नहीं खाते। और वहां पर
बड़े गर्व के साथ कहते हैं एक्सपायरी विद इन 6 months। माने दाल उबली हुई कितने पुरानी है? 6 महीना पुरानी। चटनी 6 महीना पुरानी। रोटियां डबल रोटी कितनी पुरानी? ताजी नहीं, बासी। इसका मतलब पूरे वेस्टर्न कल्चर बासोड़ा खाते हैं। आप कल्पना करना जरा, आपके घर में क्या होता है? बिल्कुल ताजा खाते हैं। इन्हीं लोगों ने हमें सिखाया है टोमेटो सॉस। मेरी टोमेटो सॉस का वर्णन करूंगा तो आप शायद छूना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल इसमें टमाटर का नाम और निशान नहीं है। आपका केमिस्ट्री का ही कोई एक पदार्थ आता है, उसका मैंने लिखा हुआ है, इसमें सब रिपोर्ट है, उसमें वो डाल देते हैं उसमें। मेरे पास इसकी अहमदाबाद लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स है टोमेटो सॉस की, केचप की। आपको हंसी आएगी, हम क्या खा रहे हैं। हमारे यहां तो मम्मी बना देती है, टमाटर को बॉईल करती है, बढ़िया सूप तैयार कर देती है, ताजा घी में फ्राई किया हुआ, शुद्ध देसी घी, गाय का घी। मैंने ये बहुत अच्छा देखा, गुजरात में गाय भैंस बहुत है, भैंस से भी ज्यादा गाय है इधर। मैंने ऐसा लगता है जैसे कृष्ण का गोकुल लगता है, गलती से वृंदावन हो गया। मुझे तो कहना चाहिए कि आजकल गुजरात में है, जगह जगह नजर आ जाती है मुझे। मैं कहना तो ये चाह रहा हूं, इतना बढ़िया चीज खाते हैं आप, और वो क्या खाते हैं समझ गए होंगे आप। माने वहां सिंपैथी नहीं है, अपनत्व नहीं है, विश्वास नहीं है, प्यार नहीं है, वहां पर केवल एक चीज है, पैसा। अब मैं आपसे पूछूं एक बात, यदि हम ताइवान चाइना में जन्म ले लिया होता तो शायद हमारी माँ ने भी बेच दिया होता, शायद कोई हमें खा गया होता। आज हम महाभाग्यशाली हैं कि हम भारत में जन्मे हैं। आपको कैसा लगता है? आपको भारत में जन्मने पर गर्व है या नहीं? दूसरी बात पूछ लो, मात्र पैसे के खातिर आप अमेरिका जाना पसंद करेंगे या भारत की सेवा करना पसंद करेंगे? आवाज कम आई ना। हमको ऐसा लगता है कि वहां जाकर बहुत मजे, लेकिन जो जा रहे हैं उनसे पूछो आप, बगल के फ्लैट में मर्डर हो जाता है और 1 सप्ताह तक मालूम नहीं पड़ता। जब स्मेल नाम का इंडिकेशन आता है, स्मेल तो समझिए, डेड बॉडी का स्मेल, तब मालूम पड़ता है अरे यार कोई मर गया है, तो फिर म्यूनिसिपैलिटी से बुला के उसको उठा के फिंगवा देते। हमें वो देश, मैं एक बात पूछूं आपको, बहुत प्यार से कह रहा हूं, हम मरते समय 1 करोड़ छोड़ेंगे कि 10 करोड़ छोड़ेंगे, इसमें फर्क पड़ सकता है। कितना? अमेरिका जाने पर हो सकता है आप 10 करोड़ छोड़ के मरे, लेकिन आप सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, रिलीजियस, हमारा देश की माटी की सुगंध, हमारे देश का प्रेम, हमारा वात्सल्य, हमारे ये सब चीज नहीं पा सकोगे आप, ये नहीं पा सकोगे। बस इतना फर्क पड़ेगा कि मरते समय आप आईसीयू में होंगे। आईसीयू, नेवर, नोबडी कैन सी यू। आप क्या पसंद करेंगे आईसीयू में? सच्ची बात बताऊं आपको, हमारे भारत में कैंसर का दाता है ये वेस्टर्न कल्चर। इसने हमको लग्जरियस लाइफ सिखा दी, लेबर करना बंद करा दिया, आउटडोर गेम बंद करा दिया। हमें वीडियो पसंद है, हमको ये इंटरनेट की चैटिंग में घंटों समय खराब करना पसंद है, हमें फेसबुक पसंद है। हो सकता है हमारे विद्यार्थी, हो सकता है आपको फोन अलाउ नहीं है, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। कितने ही बच्चे पीछे पीछे टीचर पढ़ा रहे हैं, वो सॉल्व करा रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वो बैठे बैठे अपने मोबाइल पे खेल रहा है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, आपके स्कूल का कल्चर बहुत सुंदर लगा। मैं फिर कहूंगा आपको, आप बस विचारशील बनना, मेरे कहने से नहीं। लेकिन एक अंतिम बात, ये तो समझ गए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप विदेश जाएं। आपको देश में सर्विस मिलेगी, नहीं मिले ऐसा हो नहीं सकता। और अभी तक क्या कहें आपको, मैंने फिर कहा, आप करोड़ रुपए छोड़ के मरेंगे या 10 करोड़ छोड़ के मरेंगे, फर्क काय में पड़ना है? केवल छोड़कर मरने में। तो अपन ऐसा नहीं हो सकता कि 1 करोड़ छोड़ के मरेंगे, बस, और क्या होगा। लेकिन मैं एक बात कहूं आपको, यदि आप टैलेंटेड बनते हैं और लेबर करते हैं, आउटडोर गेम खेलते हैं और ये बकवास में नहीं पड़ते हैं, रावण वृत्ति, रावण कल्चर में नहीं पड़ते हैं, तो मेरा प्रॉमिस है आपको कभी कैंसर नहीं होगा, आपको कभी आईसीयू में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि लेबर दी बेस्ट मेडिसिन है हमारी। आप बता सकते हो किसी भिखारी को कैंसर सुना है आपने? किसी पोर्टर को, कुली को,
खेडूत को आपने कैंसर सुना है? मैंने नहीं सुना। हम लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, बस यहीं से गड़बड़ है। हम खा करके पचाना चाहते। आपको पता है 25% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया फैट। देखा ना, फैट, मोटे मोटे। अपने तो यहाँ मोटा में एक आध भी नहीं दिख रहा कोई ढंग का। एक आध हो सकता है लेकिन हजार के ऊपर एक आध की क्या वैल्यू। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हो क्या बुरी हालत है। मैं इसको ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप समझ गए होंगे। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे, एक अंतिम बात पूछ लूं, बोलो आपसे, रियली अंतिम बात। 16 दिसंबर की एक घटना घटी थी दिल्ली में, आपको मालूम होगी सबको। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में हम उस घटना से इतने शर्मसार हुए कि पूरे विश्व से हमारे यहाँ पढ़ने के लिए स्टूडेंट आते थे, इंग्लैंड से आते थे, फॉरेन से आते थे, बहुत विद्यार्थी पढ़ने आते थे। देहरादून में बहुत बड़ा स्कूल है, आपको पता होगा, दून स्कूल, जहां पर राजीव गांधी पढ़े। वो स्कूल बड़ा फेमस है, लेकिन इस वर्ष 75% स्टूडेंट कम आए, 25% आए। पूरे देश में हमारी कितनी बदनामी हुई उस एक घटना की वजह से। यदि आपको लगता है वो शर्मनाक है, तो मैं आज ये चाहता हूं आप अपने गॉड, अपने खुदा, अपना लॉर्ड, चाहे वो राम हो या महावीर हो या ईशा हो, जो हो, आप उनको साक्षी रख करके कहो कि हम अपनी ऐसी गंदी हरकतों से अपने माता पिता को लज्जित नहीं करेंगे, अपने स्कूल का नाम नहीं डुबाएंगे, हम अपने देश का नाम नहीं डुबाएंगे। हमें रावण नहीं बनना है, हमें राम बनना है। आर यू रेडी फॉर राम? प्लीज हैंड्स अप, प्लीज हैंड्स अप। वेरी गुड, वेरी गुड। आप समझ गए होंगे। आप कभी किडनैप नहीं करेंगे, रेप नहीं करेंगे, रेप करने वाले को सपोर्ट नहीं करेंगे, रावण को सपोर्ट नहीं करेंगे। यदि आप रामायण पढ़ें, उठा करके रामायण पढ़ें, राम के सपोर्टर जितने थे वे सब मोक्ष में गए। राम के सारे सपोर्टर मोक्ष में गए, माने भगवान बने, और रावण के सारे सपोर्टर नरक में हैं। आप बिल्कुल पढ़ लेना जाकर के। हम रावण वृत्ति का तिरस्कार करेंगे, रावण वृत्ति से बच्चियों की, सीताओं की, बहनों की रक्षा करेंगे। हम किडनैप नहीं करेंगे, हम रेप नहीं करेंगे, और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। आपको पता ही होगा, सारी रिपोर्ट अखबार पढ़ते होंगे, 16 दिसंबर वाली घटना के बाद एक ने तो सुसाइड कर लिया वहां पर अपने जेल में, और जिस दिन पहुंचे थे तो यार पूजा हुई उनकी जोरदार। पूजा तो समझ गए होंगे, धुनाई। बस आप इतना ही संकल्प करें तो आज मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। कि एक नारा बुलवाता हूं, आप बोलेंगे? आप चाहे तो लिख सकते हैं, अपनी नगर में, अपनी गलियों में, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। रावण से ले लो यह शिक्षा, जोर से बोलना है थोड़ा सा, भले थोड़ा लाउड होगा कोई बात नहीं। रावण से ले लो यह शिक्षा, पर नारी की करो न इच्छा। आप समझ गए होंगे, आप बहुत समझदार हैं। यूं तो आप इशारे में समझ जाते, लेकिन मैं तो थोड़ा फ्रैंक हूं ना, इसलिए आपसे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोला है। रेप, किडनैप, अफेयर, शादी के पहले किसी प्रकार की हरकत, बचेंगे अपन, अपने आप को बचाएंगे तो आपका इंटेलिजेंसी लेवल बढ़ेगा, पक्की बात है। इन बातों में नहीं पड़ना, और रावण का सपोर्ट नहीं करना। समझ गए होंगे। कई बार लोग कहते हैं यार 100 रुपए देना, यार एक गिफ्ट देना है मुझे, यार तेरी चूल्हे में गई गिफ्ट। अपने को मालूम पड़ जाए तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है इन गंदी बातों के लिए। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, आपको पता हो दिल्ली के जंतर मंतर पर, चांदनी चौक पर लाखों स्टूडेंट्स, कभी कैंडल मार्च निकाला गया, कभी हाय हाय किया गया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लेकिन आपको पता है उस दिन से वो ग्रुप रेप बढ़ते ही चला जा रहा है। मेरा मतलब यह है कि हाय हाय करने से, स्ट्राइक करने से, कैंडल मार्च करने से, कंडेम करने से काम नहीं चलेगा। अब हमने एक अभियान चलाया है पूरे देश में, नारी सम्मान, नाम क्या है इसका? नारी सम्मान अभियान, राम बनो अभियान। बस मेरा ये अभियान चल रहा है, इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूं कि अब हमें यदि सचमुच वो 16 दिसंबर की घटना बुरी लगती है, हम नहीं चाहते कि हमारी बहन पर कोई एसिड अटैक करे, हम नहीं चाहते कि हमारी पत्नी किसी से पीड़ित होकर आई हो,
हम नहीं चाहते कि हमारी बहन या बहू को या माँ को कोई पीड़ित करे। तो आज हमने राम की सच्ची पूजा की है, हमने संकल्प लिया है कि हम राम बनेंगे, रावण नहीं बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी शांति से, बड़े प्यार से વંદન। તત્વજ્ઞાનની એટલી બધી ગહન અને સૂક્ષ્મ વાતો એ પંડિતજી કરતા હોય છે। અત્યારે તમારા માટે જે સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓને એકાગ્રતા વધે એના માટે શું કરવું જોઈએ, આ બધી બાબતોથી આપણે દૂર રહીએ તો આપણી ઇન્ટેલિજન્સી વધે, આપણે લાઈફમાં ઘણા બધા આગળ વધીએ અને સાચી દિશામાં આપણે આગળ વધીએ। જે પંડિતજીએ કહ્યું કે જો આપણે ઇન્ડિયામાં રહીએ તો કદાચ એવું બને કે આપણી મરતી વખતે 1 કરોડ રૂપિયા છોડી જઈએ અને ફોરેનમાં રહીએ તો 10 કરોડ છોડી જાય। એ આજની વાસ્તવિકતા છે। 5-10 વર્ષ પછીની કદાચ એ અમાઉન્ટ ઘણો બધો ડિફરન્સ હશે, પણ એટલું છોડીને જ મરવાના છે। તો શું કામ આપણે ફોરેન જઈએ? આપણે આપણું જે કંઈ ટેલેન્ટ છે એનો આપણે આપણા દેશના જ લોકોની અંદર, આપણા બધા મિત્રોમાં, પરિચયમાં, બધા જે સગાવાલામાં એ બધામાં ઉપયોગ કરીએ। એટલે આપણે જે છે એ એવી પ્રતિજ્ઞા કરીએ કે બહારનું આવું કચરા પટ્ટી આવું ખાશું નહીં, આના વિશે વધારે જાણકારી મેળવીએ કે કેમાં બધી નોનવેજ ટાઈપની વસ્તુઓ આવે છે તો એવી વસ્તુઓ ન ખાઈએ અને સારું જીવન જીવીએ। અને ખાસ કરીને આ ઉંમરની અંદર જે આપણને સતાવે છે વસ્તુ એ જે છે ઓપોઝિટ સેક્સની, તો એના સંદર્ભની અંદર જે અગાઉની જે સિસ્ટમ હતી બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, તો જ્યાં સુધી મેરેજ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે ભણતા હોય ત્યાં સુધી એ બધી બાબતોથી જો આપણે પર રહીએ તો એકચ્યુઅલી આપણી પ્રગતિ થાય। નેપોલિયન બોનાપાર્ટ માટે એવું કહેવાય છે કે એ વખતે જે છે જ્યારે નાના હતા ત્યારે એક ઘરમાં રહેતા હતા, ખૂબ સ્વરૂપમાં એની ડોટર હતી, ત્યાં એ રેન્ટ ઉપર રહેતા। તો અમુક વર્ષો પછી જ્યારે નેપોલિયન બોનાપાર્ટ જે છે એ એટલા બધા સરસેનાપતિ થયા ત્યારે એમને કોઈ પત્રકારે પૂછ્યું કે તમે જ્યાં રહેતા હતા રેન્ટ ઉપર ત્યાં તો એક ખૂબસૂરત યુવતી હતી, એ તમને બહુ તમારા વિશે ઘણું બધું આકર્ષણ હતું। તો નેપોલિયન બોનાપાર્ટ એટલું જ કહે છે કે જો એ વખતે જ હું એમાં પડ્યો હોત તો હું નેપોલિયન બોનાપાર્ટ ન થઈ શક્યો હોત। એટલે આપણે જો આપણી લાઈફ બનાવી હોય તો આપણે ટ્રુ સાયન્સની અંદર આગળ વધીએ, સાચી દિશામાં આગળ વધીએ અને જે કાંઈ આજે પંડિતજીએ કહ્યું છે એ બધી બાબતો લાંબા સમય સુધી યાદ રાખીએ। અમુક વાતો એવી હોય છે કે સાંભળીને જતી કરવાની, અમુક વાતો 2 કલાક માટે યાદ રાખવાની, અમુક 8-10 દિવસ માટે, અમુક વર્ષો સુધી અને અમુક લાઈફ ટાઈમ। અને આપણે એવી પ્રતિજ્ઞા કરીએ મિત્રો કે આપણે મેરેજ કરતી વખતે આપણે સામે કન્ડિશન મૂકશું કે અમે સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેવું છે આપણે, એટલે સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેવા માટે ઇફ આર યુ રેડી ધેન આઈ એમ રેડી, અધરવાઇઝ નોટ। જો તમે મમ્મી પપ્પા સાથે જે છે, જે આવનારી વ્યક્તિ છે એ આપણા મમ્મી પપ્પા સાથે રહેવા માટે તૈયાર હોય તો ને તો જ આપણે હા પાડવી, બાકી ના પાડી દેવી, બરાબર? એવી પ્રતિજ્ઞા કરીએ જેને કારણે આપણે દુનિયામાં છીએ, જેને કારણે આપણે આગળ વધ્યા છીએ। એવા જે પેરેન્ટ્સ છે એની અંતરાત્મા જે છે એ ક્યારેય કકડાવીએ નહીં અને આપણને એના અંતરના આશીર્વાદ મળે, એની આંતરડી ઠરે એવા આપણે કાર્યો કરીએ। અને ખાસ કરીને છે કે આપણી બહેનની સાથે કંઈક થાય કે આપણા મિસિસની સાથે ભવિષ્યમાં કંઈક થાય તો નેચરલી આપણને કોઈ પણ ન ગમે, આપણી મધર સાથે કંઈ થાય તો એવું કોઈ કૃત્ય આપણે ન કરીએ અને કોઈ કૃત્ય એવું કંઈ કરતા હોય તો એને આપણે ક્યાંય અનુમોદના ન આપીએ, સહકાર ન આપીએ। ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ। અને સ્વામીજીનો, પંડિતજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર હૃદયથી। આપણે સૌ ઉભા થઈ અને એમને નતમસ્તક એકવાર વંદન કરીએ અને પછી જે પ્રમાણે પરેશ સર કે એ પ્રમાણે, અને સ્વામીજી અહીંયાથી પંડિતજી આગળ વધે પછી તમારે ઉભો થવાનું છે। एक्सक्यूज मी। मुझे आपकी बात सुनकर एक बात याद आई। वैसे तो आजकल सबको फेमस है एड्स, ये एड्स उन्हीं की कृपा है। उनके स्कूलों में, वेस्टर्न कल्चर के स्कूलों में, छोटे मिडिल स्कूलों में कंडोम मशीन लगा दी जाती है। माने क्या कल्चर है? कंडोम मशीन का मतलब है कि आज भी हमारे रेडियो से, मुझे दुख है इस बात का कि हमारे रेडियो से इस बात का रोज प्रचार किया जाता है, सेफली सेफ करो बस ताकि ऐसे से बच जाओ। माने रावण बनने का प्रचार प्रसार हमारे रेडियो टीवी कर रही है। लेकिन हम फिर कहना चाहेंगे आप इन सब बातों से बचेंगे, जरूर बचेंगे। और मैं नहीं समझता हूं कि यदि आपको अपने धर्म का, अपने माता पिता का प्राउड हो और अपने नेशन का प्राउड हो तो आप कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। थैंक्स वंस अगेन। जय हिंद।